اس کی بیماری تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں بیبی تمہاری بیماری کیا ہے. اب نہیں نظر آتا کہ میں اس کی اور رسپیکٹ کروں. آپ کو کوئی زیادہ ہی شوق ہے دلہن بننے کا. السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جو منہ پہ اسمائل ہے، اور جو ہے نا ویڈیو کے آغاز میں نے اسمائل شروع کر دی، اور تھمبنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج جو ہے نا میری ویڈیو بڑی مزیدار ہے. اور جو ہے نا آج میری بڑی پیاری بہن کے بارے میں ویڈیو ہے کہ ایک بار پھر دلہن، تیسری مرتبہ. ابھی ہم تو ایک دفعہ بن کے نا دلہنے تو بندہ آ کے چاہتا ہے، تیسری بار تو بھائی استغفر. اچھا ایز اے فن اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی. تھمبنیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میری بڑی پیاری معصوم سی بہن ہے، میری دوست بھی ہے، میری بڑی اچھی کلیگ ہے، اور ہمارے گھر بڑا اچھا اس کا آنا جانا تھا. اب نہیں ہے، تھا. تو جو ہے نا ان کے بارے میں ویڈیو ہے. وہ بڑی سمارٹ ہیں، بڑی سلیم ہیں. اچھا جب ہم آتے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر، اور جب ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پہ کہ ہم غریب کسی کی جو ہے نا وہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، یا پھر کسی غریب کے بارے میں مطلب چیریٹی وغیرہ کے بارے میں جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سادگی اختیار کریں. اگر ہم بڑے موڈ ہیں بھی نا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں. کیوں کہ ہمارا جو ہے نا بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ ڈھنگ کا کپڑا پہنے ہوئے بھی مدت ہو جاتی ہے. لوگوں کو ترن پہنتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا پھٹے پرانے، اور اپنا جو نا ذاتی کپڑا تو انہوں نے قسمت میں ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارا کام ہے ان کے سامنے ہم اتنا ایک سادہ لباس پہن کے جائیں کہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہائے کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی ہے. میری جو سوچ ہے، اب آگے آپ سب کی سوچ کیا ہے کمنٹس باکس میں جو ہے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے بھی پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اچھا اگر اب میری ایج ہے 50 سال، ٹھیک ہے، میں اپنی بات بتا رہی ہوں، میری عمر 50 سال اس ٹائم ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو 20 یا 25 سال کی کہوں تو آپ سب نے تو کہنا کہ لعنت ہے سانٹی دوتے اپنے آپ نو کڑی بنا کے بیٹھی. کیونکہ میں دادی ہوں، میرے ماشاءاللہ سے جوان بیٹا ہے، اور مجھے اس عمر میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ کون ہوتی ہے تنقید کرنے والی، لیکن مجھے اس عمر میں جو ہے نا ہاف سلیو پہنتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ شرم آنی چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے. اچھا دوسرے چینل پہ جو ہم دو اگر ہمارے چینل ہو، تو ایک چینل پہ تو جو ہم بڑے ابائے شبائے پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے چینل کے اوپر ہم اپنی کمر بھی ننگی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بازو بھی سارے ننگے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں یہ اچھی بات ہے؟ اور اس عمر میں آ کے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی جو ہے عبادت میں جو ہے نا گزارنی چاہیے. کیونکہ ہم جب 40 سے ابو ہو جاتے ہیں، اوپر ہو جاتے ہیں، تو سمجھے کہ ہم قبر کے بڑے نزدیک ہو جاتے ہیں. اور ہماری بڑی جو ہے نا ایک بڑی معصوم سی بہن عظمیٰ باجی جو ہے نا ابھی تک 40 سال کی ہیں، اور ان کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، اور وہ ایک دفعہ پھر دلہن بنی. تھامنیل ان کا میں نے دیکھا، میں نے پوری ویڈیو میں مجبور ہو گئی کہ وہ ایک دفعہ پھر کیوں دلہن بنی. اچھا جی 3 ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور ان کو ابھی تک بھی دلہن بننے کا شوق ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ایسی عورتوں کی کہ تم دلہن ایک دفعہ بنی ہو تو شکر الحمدللہ کیا کرو، اور توبہ کیا کرو کہ دوسری دفعہ دلہن نہ بنو. دوسری دفعہ دلہن بننا کو فخر کی بات نہیں ہوتی، ڈوب کے مرنے کی بات ہوتی ہے بندے کے لیے. دوسری دفعہ دلہن کون بنتی ہے؟ تیسری دفعہ ہی بن گئی. اب تمہیں تو شوق ہی لگے، لت ہی لگ گئی دلہنے بننے کا. تم تو کھیل کھیل رہی ہو دلہن کا. جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دفعہ دلہن بنے نا تو شکر الحمدللہ کہتی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کے سر پہ بیٹھ جاتی ہیں، وہ دلہن نہیں دوبارہ بنتی. چلو دوبارہ بن گئی، کسی مجبوری میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ دلہن بننے کا خواب نہیں دیکھتی. تیسری دفعہ بھی ہو جاتا ہے، چلے قسمت ہے، چوتھی دفعہ نہیں دیکھی. اس بی بی نے تو چوتھی دفعہ دلہن بننے کا جو ہے نا وہ خواب دیکھ لیا ہے، اور اپنے آپ کو ساڑی میں لے کر آئی ہیں. اور اتنی جو ہے نا وہ آپ سب ان کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ان کا چینل بڑا ہے، بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ پاک اور ترقی دے، اور ہمارا چھوٹا ہے، بس چھوٹا ہی رہے، ہمیں خیر ہے. اللہ پاک بس ہم بتا رہے ہیں نا لوگوں کو. بہت سے لوگوں کو جلن ہوگی، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مجھے حسد تنقید کا نشانہ بنائیں کہ آپ ان سے جل رہی ہیں. وہ بڑی پیاری ہیں، وہ سمارٹ ہیں، اور وہ ایسی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پف کٹوایا ہو، وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ کینسر پیشنٹ ہوں،
और यहाँ से निकलती है कैंटीन में बैठ के, कोई दवाई नहीं अपनी दिखाती, वो दवाई कौन सी इस्तेमाल करी, कभी उसने कोई टेस्ट नहीं दिखाया तो उसके कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कभी उसने अपने डॉक्टर का नहीं बताया, और यूट्यूब के ऊपर आके लाइव 2-2 घंटे रोती है कि मुझे डोनेशन दे, मैंने अपना इलाज करवाना। इलाज करवा किस चीज़ कर रही है किसी को नहीं पता। और कहती है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो मुझे 1-1 हज़ार दे, मैं अपनी गाड़ी ले सकती। अभी भी तूने कनालों में नहीं एकड़ों में ज़मीन बना ली है, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ आता नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे लिंक बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए हुए हैं। अच्छा, पफ कटवाया इस औरत ने, आपने देखा उसकी बाल स्टेप कटिंग हुई हुई है, खाली पफ नहीं कटा हुआ, स्टेप कटिंग हुई हुई है। जब हम 40 साल से ऊपर हो जाते हैं ना तो हमने क्या करना होता है कि हमने स्टेप कटिंग करवानी होती है। स्टेप कटिंग करवा के अपने बालों की, ज़ाहिर सी बात है, हेयर स्टाइल वगैरह बना के तो हम रखें ना अपना, और वो बार बार हमारे जब बाल आगे आते आए हाय हाय हाय, फिर उसके बाद क्या होता है, हम साड़ी पहन के आते, और फिर हम अपने बेटे को वेलकम कर रहे थे कॉलेज से आते हुए, मुन्ना काका। तीसरी चौथी बार दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखने वाली उसका मुन्ना काका, आपने देखा, जो उससे भी बड़ा है, मुन्ना जी उससे भी बड़ा है। तो उस मुन्ना जी को भी शर्म नहीं आई, लास्ट वाला सीन जब उसने अपनी माँ को गले लगाया तो उसकी कमर शमर सारा कुछ नजर आ गया, ये सारा कुछ ही। तब उसके अबाई किधर गए, ये तो उम्रा करके आई है ना, तो उसके अबाई किधर है, कम से कम 6 महीने तो अपने जिस्म को जो है ढाँप के रखती। इससे ये उम्मीद नहीं थी कि अपनी नुमाइश यूट्यूब पे नहीं करवानी चाहिए थी। हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ। और मेरी एक बेटी है, एक नहीं 2 माशाल्लाह से, जो मेरे जो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया उज़मा की वीडियो देखने के बाद कि आंटी आप भी चैरिटी का काम करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन हमने कभी आपके बाल आगे नहीं देखे, आपका दुपट्टा उतरा नहीं देखा। तो पुत्र, मुझे जो है ना, मैं अपने लिए काम नहीं करती, मैं आवाम के लिए, गरीबों के लिए काम करती हूँ। और मैं यूट्यूब पे नहीं भी आऊँगी, मैं फिर भी काम करती रहूँगी। और जब मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं थी तभी मैं काम करती थी, शुक्र अल्लाह पाक का। और कभी दुपट्टा नहीं उतारा, और ना ही अल्लाह पाक जो है ऐसा मौका लेकर आए कि हमारे सर से जो है दुपट्टा उतरे। हमारी मजबूरी है कैमरे के सामने आना, लेकिन ऐसा जो ना वो टाइम ना अल्लाह पाक लेकर आए। मेरे बेटे की शादी थी, इकलौता मेरा बेटा है, और सब ने कहा था कि आप जो ना साइड पे रख लें दुपट्टा, लेकिन मैंने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। क्यों, इससे ज़्यादा हमारी पहचान हो जानी है दुपट्टा उतारने से। और इस बीबी ने तो अपनी स्टेप कटिंग करवाई हुई है, और फिर जो है ना कहती है कि इस बंदे को जी 4 लाख का समोसा, 4.5 लाख का समोसा। खुदा का खौफ खाओ, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये बाहर वाले जो लोग जो ये पैसा भेजते हैं ना, ये कोई आपको जो है ना वो गिफ्ट नहीं भेज रहे होते। कभी आपको किसी ने कहा है कि ये हमारी तरफ से आपको तोहफा है पैसे, जो वो कहे ना ये तोहफा है, वो आप रख सकती हैं। लेकिन जो आपको पैसे भेजते हैं ना, वो आपको सदका खराज ज़कात भेजते हैं। आप उसमें साड़ियाँ भी पहन रही हैं, आप उसमें गाड़ियाँ भी ले रही हैं, बड़े घर भी ले रहे हैं, अपनी माँ बाप को भी घर लेके दे रहे हैं, स्टेप कटिंग भी करवा रहे हैं, गोल्ड भी बनवा रहे हैं, अपनी अम्मा को भी गिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड। वो ज़कात के और सदके खराब के पैसे। लेकिन हम ये पैसे खाते हुए बड़ा फख्र जो है महसूस करते हैं, गरीबों का हक खाते हुए और सदका खरात खाते हुए। शेम ऑन यू उज़मा बाजी, आपने साड़ी पहनकर जो ना अच्छा नहीं किया, और आपको कोई ज़्यादा ही शौक है दुल्हन बनने का। बड़े अफसोस की बात है। हाँ, मियाँ को आपने दूल्हा बना दिया, वो ठीक है, मर्द पे 4 शादियाँ फ़र्ज हैं, लेकिन अगर वो भी उस सूरत में अगर कि वो अपने सारे हकूक़ दूसरी बीवियों को पूरे कर देते हैं, और अगर आपकी बीवी आपको इजाज़त देती, ठीक है आपने इजाज़त दे दी, उसकी शादी बेचारे मासूम की होगी। क्यों कि वो अपनी बीवी की तरफ लगा रहेगा, आप कटिंग शटिंग करा के साड़ियाँ सूड़ियाँ पहन के नागन की तरह घूमती फिरती रहेंगी। अच्छी बात है, और अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, लेकिन जो है ना ये साड़ी वाला ये वाला काम जो है ना वो नहीं। और आपने कुछ चमचे चांदी का आपके आगे पीछे होते हैं, तो वो आपने रखे हुए हैं आपकी चमचागिरी करने के लिए। तो अच्छी बात है भाई, और तरक्की करें। ऐसे लोग ही तरक्की करते हैं जो हमेशा चमचागिर खुद भी होते हैं और चमचे साथ भी रखते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। यकीन करें, हम क्यों नहीं हो रहे, हमारे जैसा इंसान क्यों नहीं कामयाब हो रहा। हमारे तो मुखालफत भी इतनी लोग करते हैं, हम फिर भी नहीं कामयाब होते। हम तो इतनी मेहनत करते हैं, लोगों के आगे पीछे, गरीबों को सबको देखते हैं, हम कामयाब नहीं होते। क्यों, हम चमचागिर नहीं। और हमेशा जो है ना दोगला बंदा और चमचागिर ही जो है ना वो कामयाब होता है। और इसका जो है ना लाइफ स्टाइल, वो आपको इसकी साड़ी पहनने से पता चल गया होगा।
और जब ये लोगों के आगे रोती है ना आके, जब देखो यूट्यूब के ऊपर दूसरे चैनल पे रोती रहती है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अभी भी जब तुमने फैशन करने लगी थी, तुमने अपनी एज बताई 40 साल और मेरी एज है 50 साल, मैं 50 साल की हूँ, तुम 40 साल की हो, मुझसे छोटी हो इसलिए मैं तुम करके बात करी। पहले मैं कहती थी उस्मा आपी आप, मुझे लगता था कि आप मुझसे बड़ी हैं, तब की बात है। लेकिन अभी मुझे मतलब ये पता चला है कि आप मुझसे छोटी हैं, तो फिर मैं तुम करके बात कर सकती हूँ। इसलिए जो है ना वो माइंड प्लीज मत कीजिएगा। और हमेशा इंसान जो है ना उसके लिबास को, अगले बंदे के लिबास को, अगले बंदे की ज़बान को और उसके जो है ना वो हुलिये को देख के जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम सब। अच्छा, और इसका जो मुझे हुलिया जो है ऐसा नहीं लगा, अब नहीं नज़र आता कि मैं इसकी और रिस्पेक्ट करूं। ये जो है ना चैरिटी वाले चैनल, दूसरे चैनल पे तो जाके तो ये बड़ी अबाई शबाई और बड़ी जो है ना अपने आप को हिजाबों में रखती है, और दूसरे चैनल पे आके ये स्टेप कटिंग भी अपनी दिखा देती है और अपना जिस्म भी दिखा रही होती है। बहुत गलत बात है। चंद पैसे कमाने के लिए हमने जो है ना हमें अपना जिस्म नहीं दिखाना चाहिए। हमें इसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा। पहले हमें ये बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन इसका रोना धोना, इसकी बीमारी तो आज तक किसी ने पूछा नहीं बीबी तुम्हारी बीमारी क्या है। तुम जो इतने पैसे तुमने इकट्ठे किए, कम से कम 80 से 90 लाख रुपए इकट्ठा किया, वो किस बीमारी के ऊपर लगाया? कोई एक टेस्ट दिखाया कभी ऑनलाइन आके, लाइफ आके? आप सबको जो फैमिली कहती है, कभी आके कहा है कि ये वाला मैंने टेस्ट इस तारीख को करवाया और ये फलां लैब से हुआ? नहीं, आप सबने कभी पूछने की जहमत ही नहीं की। आप तो हमारे जैसे लोगों को आते हैं कमेंट्स बॉक्स में जो है ना, आप उसे हसद करती हैं, आप जेलस होती हैं, आप ये होती हैं, आप खुद प्यारी नहीं है, वो प्यारी है, आप उसको तनकीद कर रही, बस ये वाली ही बातें हमें जो ना आ रही होती हैं। लेकिन आप सब ने जो है ना वो कभी अपनी आंखों से जो है ना वो पर्दा हटाया ही। जो इंसान आपको लगता है ये ठीक है, बस आप कहते हैं कि वो ही ठीक है, अगला बंदा दूसरा बेशक उससे ज्यादा अच्छा हो, लेकिन नहीं, आपने सपोर्ट तो उसकी ही करनी होती है। क्योंकि ये जो है ना हमारा मुआशरा ही ऐसा है, हम दोगले बंदे की और चमचागिर बंदे की ही चमचागिरी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी होगी और आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए चैनल को अगर आपका दिल माने तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अगर आपका दिल मुतमईन होता तो बिल्कुल ना करें। और बैड कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिएगा, उनसे जाके पूछिएगा कि आपने ये हरकत ठीक की। अभी तो फिर आप जवान हैं, 40 साल की उम्र तो नहीं होती ना, तब शादी कर सकती हैं भाई, कर सकती हैं, तीसरी क्या चौथी पांचवी छठी भी कर सकती हैं। और जो आपकी हरकत हमें नज़र आ रही हैं ये भी करनी भी चाहिए। चलें जी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप सबकी जो है ना वो तरकीद का निशाना कहीं मैं ना बन जाऊँ अगले बंदे की असलियत दिखाते दिखाते। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जो है ना जल्द और बहुत ही अच्छी और बड़ी मज़ेदार वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।